Hello everyone, my name is Lohit Jindal and I welcome you all in our NSCGS series. So students, today we'll be starting with sequences and series. Okay, so let me introduce myself first. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and for the past 8+ years I have been teaching mathematics for various Olympiads, JEE and NSCGS and everything, KVPY also. So it has been good that many of my students have got very good ranks in IIT JEE, like single digit rank and 2 digit ranks also. Okay, so I hope we'll learn together in this session about sequences and series, and we'll see some questions जो NSCJS में किस type के questions आते हैं, है ना? And actually we might be seeing some previous year NSCJS questions also. ठीक है? So I'll ask you guys, आप एक बार अपने notebooks और pens copies ready रखें. Okay, please bring them so that you solve the questions alongside me. एंड हाँ, इसके लिए थोड़ा प्री रिक्विजिट है कि आपको सीक्वेंसेस सीरीज के बारे में थ्योरी पता होनी चाहिए. ओके, सो यू शुड बी नोइंग दिस ऑलरेडी. सो बिकॉज दिस सेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है एपी और जीपी के बारे में, ओके, फॉर द टाइम बिंग इन दिस सेशन टुडे विल बी कवरिंग एपी ओनली, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर कुछ भी नहीं पता है बच्चों, सो प्लीज रीड द टॉपिक फर्स्ट एंड देन सी दिस वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो फिर नहीं समझ में आएगा, राइट? So if you have some prerequisite knowledge about AP, then you can watch this video. Okay, so all right, let's start with this session. Okay, let's see our first question of the day. Okay, all right, here's the first question. So this is NSCJS 2015 question. This has been in NSCJS 2015. Okay, तो solve करते हैं. Let's read the question first. तो बच्चों, the question says the sum of the first four terms of an AP, sum of the first four terms of an AP is 56. Sum of the last four terms of an AP of the same AP is 112. Okay, the first term of the AP is 11, right? So first term is 11. Let's write it down. A is 11, right? And I also know the sum of the four terms, right? Okay, let me understand the AP. AP कैसा दिखेगा? It will be A is 11, so first term is 11. Next term is 11 plus common difference. Next term 11 plus 2D, and उसके बाद 11 plus 3D and so on, right? So बच्चों, ये मैंने फर्स्ट फोर टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पे, राइट? दीज आर T1, T2, T3 एंड T4. दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4, है ना? फर्स्ट फोर टर्म्स लिखी है, आगे और भी होंगी. सो इट्स गिवन टू मी दैट द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स इज 56. सो बच्चों, इनको ऐड करो ना. दिस इज 56, सो T1 plus T2 plus T3 plus T4 is 56. So if we add these all up, क्या आएगा? देखो, 11 plus 11 plus D plus 11 plus 2D plus 11 plus 3D. तो 11 चार बार ऐड हो रहा है, so that will be 44 plus D plus 2D plus 3D, that is 6D is equal to 56. तो बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 6D is how much? That is 12 and you get D equal to 2, right? So you get D equal to 2. तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया. फर्स्ट टर्म हमें पता है 11 है, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया. सो एक्चुअली नाउ अब हमें एपी पता है कि एपी है क्या, कौन सी एपी हमारे पास. सो लेट मी राइट दैट द एपी इज एग्जैक्टली 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन, राइट? इट्स गोइंग ऑन. हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एपी. सो फॉर दैट आई नीड टू अप्लाई द सेकेंड हाफ ऑफ द कंडीशन दैट द सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी इज 112. ठीक है, तो लास्ट फोर टर्म्स, लेट्स से द सीरीज हैज n टर्म्स, राइट? n टर्म्स है. सो व्हाट इज द लास्ट टर्म? वी राइट इट एज tn. उसके पहले वाली tn minus 1, tn minus 2 plus tn minus 3, दिस इज 112, राइट? तो बच्चे यहाँ पे अब क्या करें? देखो, सो tn कितना होता है? a plus n minus 1d, राइट? लेट मी राइट द फॉर्मूला हेयर फॉर tn. tn फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d. तो बच्चे आपको a भी पता है, d भी पता है, so let's write it down. So what is tn? a is 11 plus n minus 1 into 2, right? So इसी तरह से next one 11 plus n minus 2, because इस बार n की वैल्यू n minus 1 है, so n minus 2 into 2 plus 11 plus n minus 3 into 2 plus last term 11 plus n minus
n minus 4 into 2, right? This much is 112. ठीक है, तो बच्चों अगेन 11 plus 11 plus 11 plus 11, that term is adding up to 44 plus, देखो अब ये जो टर्म है सब में 2 कॉमन लिख सकते हैं ना, एनीवेज 2 कॉमन लिख सकते हैं, सो 2 कॉमन, अंदर क्या आएगा n plus n plus n plus n, 4n minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, सो कितना हुआ minus 10, राइट? सो 4n minus 10, आप सॉल्व करो साथ साथ में, इट इज इक्वल टू 112, ठीक है? सो बच्चों इन दिस लीनियर इक्वेशन ओनली अननोन इज n, तो वही फाइंड करते हैं हम, तो ये हमें मिलेगा, ओके आई कैन टेक 2 कॉमन आउट ऑफ द ब्रैकेट, है ना? सो 44 को तो उधर ले ही जाते हैं, सो आई विल गेट 2 into 2 times 2n minus 5 equal to 112 minus 44, that is 68. तो बच्चे 4 से डिवाइड हो जाएगा, so 4 will cancel this, 2 will cancel 68 for 34, 2 will cancel this 34 for 17. तो बच्चों 2n minus 5 is equal to 17, so 2n is equal to 22 and this will give me n equal to 11, and that is our answer. So बच्चों C option will be the answer, n equal to 11. So number of terms in this series is 11, or this AP 11 terms होंगे. So AP हमने find कर ही लिया है already. This is the AP, right? With the first term 11, common difference 2, so 11, 13, 15, 17 and so on. तो आप verify भी कर सकते हो, right? I hope the first question is clear. Okay, so let's continue, right? Let's see. I hope you understood this. आगे बढ़ते हैं, let's check the answers, and yes, the answer is 11, right? You can see it here. All right, let's see the next question. All right, so this is our next question, बच्चे. Okay, what is the sum of all 3-digit even numbers divisible by 17? बड़ा इंटरेस्टिंग वे में दिया हुआ है बच्चे ये क्वेश्चन, देखो sum of all 3-digit numbers, 3-digit even numbers, तो जो सोच दम समझने वाली चीजें हैं, 3-digit भी है, even भी होना चाहिए, and should be divisible by 17 also. तो बच्चे इनडायरेक्टली हमें तो ये बोला जा रहा है, देखो 17 and 2 are co-prime, है ना? तो अगर एक नंबर है जो even भी है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है और 17 से भी डिविजिबल है. सो इनडायरेक्टली वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड numbers which are divisible by 34, 2 into 17, right? सो बच्चे 34 के मल्टीपल्स हमें सोचने हैं, ठीक है? 34 के मल्टीपल्स हमें सोचने हैं. सो सबसे छोटा 3-digit नंबर कौन सा होता है जो 34 से डिविजिबल हो? ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज 34 into 3, आई थिंक, है ना, विच इज 102, दैट इज द स्मॉलेस्ट. सो बच्चे A1 कितना होगा, और A टर्म यू कैन से A टर्म इज 102, द फर्स्ट टर्म तो 102 होगा. नाउ सिंस इट इज डिविजिबल बाय 34, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 34 ऐड करने पे आएगा, राइट? So your sequence now you can write it as 102 plus 34 हो गया 136, है ना? Even भी आएगा, वो 34 से डिविजिबल भी है. So again add 34, so 170, ठीक है? तो बच्चों अगर आप ऐसा करते जाओगे, and similarly you can check the highest number, highest 3-digit number कौन सा होगा. If you keep on doing this, check it out, है ना? इसी मेथड से, जैसे हमने ये देखा. So you can see the last number of the sequence would be 986. वो आपको चेक करना पड़ेगा, उसके कई वेज हैं. ओके, वन वे इज टू डिवाइड 1000 बाय 34, ठीक है? अगर आप 1000 को 34 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो इट्स 500 बाय 17, सो अप्रोक्सीमेटली 2, एंड दिस इज 160, सो 160 इज 9, सो 29 पॉइंट समथिंग, राइट? तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसका, मतलब 34 into 29 चेक करके देखो इसका मतलब, राइट? The point being, check 34 into 29, what is it? That will be 986, ठीक है? 29 point something आ रहा है ना. 1000 is obviously not a multiple of 34, but I got to know कि 29 complete multiples of 34 are there till 1000, है ना? तो सॉल्व नजर नहीं करना इसके आगे, बस 34 into 29 चेक करो and that will be 986, right? So अब आपके पास लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, ठीक है? बट सम फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, राइट? ऑल्दो बाय जनरल लॉजिक यू कैन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, बिकॉज 34 into 3 से लेके 29 तक जा रहे हो आप, राइट? सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ टर्म्स आर 27, बट इवन देन
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं जनरल टर्म का। सो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था a प्लस n माइनस 1d, सो 986 इज इक्वल टू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू 34। तो बच्चों यहां से क्या आएगा, 34 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 884, राइट। 986 minus 102 will be 884. So n minus 1 आप डिवाइड करोगे, this will be 26. It will cancel it for 26. तो आपको n मिलेगा 27. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉजिक से भी देख सकते हो, राइट। वंस इट इज डन, हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n by 2 into a plus l। हमें लास्ट टर्म पता है, तो लेट्स यूज दैट फॉर्मूला। ओके, इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस फॉर्मूला। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, 2a plus n minus 1d, कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, बट इन दिस केस लास्ट टर्म पता है हमें, सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। सो व्हाट इज द सम, नंबर ऑफ टर्म इज 27 by 2 into a is 102 plus 986। तो बच्चे क्या है, 27 by 2 into 1088, so 2 will cancel this, 544। सो बच्चे 544 into 27, थोड़ा कैलकुलेशन है, 7 4s are 28, so can check the calculation, I think it will be 14,688, that is C option। okay, that's it, calculation करोगे, C option will be your answer। okay, so आप देख सकते हो क्या लॉजिक लगाना है। तो हाँ, कॉमन सेंस यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, यू हैव टू कंसिडर द मल्टीपल्स ऑफ 34 जो 3 डिजिट होंगे, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं to the next question and let's check the answer also. Yes, the answer is C option। okay, all right, so I hope you are getting to understand this। all right, so the next question is very good, very interesting, thoda different hai। okay, another logic। so see bachcho, if a1 a2 a3 up to a100 are in AP arithmetic progression with common difference of 2, ठीक है, such that a1 plus a2 plus a3 up to a100 is 7400। तो बच्चे सभी सीरीज टर्म्स का सम is 7400, right। what we have to find is a1 plus a3 plus a5 up to a99। तो ऑड टर्म्स का सम ढूंढना है, ऑड टर्म्स मतलब a1 a3 a5 ऑल्टरनेट टर्म्स का, राइट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चों देखो, मैं क्या कंसीडर करता हूं, लेट्स से द रिक्वायर्ड सीरीज a1 plus a3 plus a5 till a99। लेट मी पुट इट एट सम k, ठीक है, मुझे k फाइंड करना है, राइट। नाउ लेट्स राइट दिस एक्सप्रेशन a2 plus a4 plus a6 up to a100, ठीक है। क्या मैं बच्चों इसको ऐसा लिख सकता हूं, a2 कैसे मिलता है मुझे, a1 में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे, राइट। a2 इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a2 को a1 plus 2 कॉमन डिफरेंस, राइट। सिमिलरली a4 को कैसे लिख सकता हूं, a3 plus 2, ठीक है। एंड सिमिलरली a6 को a5 plus 2। you're getting the pattern है ना। तो लास्ट में a100 को क्या लिखेंगे, a99 plus 2। so what happens now, जो a1 a3 a5 a7 के साथ ऐसे चलेगा पूरा a99 तक, that has become a complete series, so that is k plus ये 2 कितनी बार आएगा, how many brackets are there, 50 टर्म्स है, 2 4 6 8 up to 100 जा रहे हैं, 50 टर्म्स है, so 2 into 50, so this becomes k plus 100। ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। सो बच्चे जो ये पूरी सीरीज बनी हुई है 7400 वाली, a1 plus a2 plus a3 है ना, so until a100 which is 7400। now isn't this composed of the two series, एक तो ये वाली और एक ये वाली सीरीज, इन दोनों का सम है ना। सो जो ऑड टर्म्स का सम है उसको मैं क्या लिखूंगा, k, प्लस जो इवन टर्म्स का सम है उसका सम है k plus 100, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 7400 एंड दैट्स इट। अब हमें k फाइंड करना है, सो इट्स 2k is equal to 7400 minus 100 is 7300। तो k कितना आएगा, 7300 by 2, that is 33,650 and that will be our answer। this thing is our answer, right। so B option, ठीक है।
सो था ना इंटरेस्टिंग। तो पुरानी जो सीरीज हमें गिवन है उसी का यूज किया हमने, राइट? तो दैट इज हाउ इट इज यूजफुल। तो आप इस सीरीज में भी कर सकते थे, यू कुड हैव रिटन इट लाइक दिस, A1 A2 A3 जो ये सीरीज चल रही है, आप उसमें ये भी कर सकते थे, A2 को खुद से लिख दो A1 + 2, तो ट्वाइस ऑफ द सीरीज प्लस 100 बन जाता, ऑल्दो यू वुड हैव गॉट द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? एंड आई होप यू आर सॉल्विंग इट लॉन्ग साइड विद मी, है ना? कभी भी जरूरत हो तो आप पॉज करके खुद सॉल्व करो पहले, ठीक है? ऑलराइट, so let's move on to the next question. Okay, I think this might be the last question of the session. So this question has come in NSEGS 2015. ठीक है, so similar kind of question जो हमने आज किया, but इसमें थोड़ा difference है. So बच्चे this time there are 10 numbers in a certain AP. 10 terms है हमारे पास. The sum of the first 3 terms is 321. So let's just write it down, है ना? AP कैसे होगी? A plus D, A plus 2D and so on. So there are 10 terms. So sum of first 3 is 321. तो कर देते हैं ना, A plus D plus A plus 2D, this is 321. तो बच्चों यहां से क्या आएगा? 3A plus 3D is 321. So 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, so I'll get A plus D equal to 107. So this is my first equation, right? एक रिलेशन आ गया मेरे पास A और D में. Now the sum of the last 3 numbers is 405. तो बच्चे लास्ट टर्म फिर से मैं लिख लेता हूं, Tn plus Tn minus 1 plus Tn minus 2 is 405, राइट? तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, A plus n minus 1. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, यहां पे हम बेटर कर सकते हैं, इट्स एक्चुअली n कितना है? n is 10. so last 3 terms, so T10, let me write it down. So T10 plus T9 plus T8 is 405. so T10 कितना है? A plus 9D. T9 कितना है? A plus 8D. and T8 is A plus 7D. that is 405. तो बच्चे इसको देखते हैं कितना आया, 3A plus 24D is equal to 405, right? so बच्चे इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, A plus 8D is 135. so that is your second equation, right? so this is equation 1, this is equation 2. now you have two linear equation in two variables A and D. so let's solve them. so 2 minus 1 करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? A कैंसिल हो जाएगा, 8D minus D is 7D is equal to 135 minus 107, so that is 28. so that gives you D equal to 4. फाइंड क्या करना था? sum of all the 10 numbers. चलो, D is 4 and what is A? अगर आप इसके अंदर डाल दोगे तो 103, right? so once you get this, अब तो sum का फॉर्मूला यूज करना है, sum of 10 terms, so that is 10 by 2 into 2 into 103 plus number of terms is 10, so n minus 1 is 9 into D is 4. ठीक है, so बच्चों आपके पास क्या है यहाँ से? so 10 by 2, एक्चुअली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फैक्टर 2 का कैंसिल कर सकते हो. देखो 2 will cancel this 2 and cancel this 4 of 2. तो क्या बचा आपके पास अंदर? so 10 into 103 plus 18, so 121. so your answer will be 1210. so that is I think option B. तो B option will be your answer. ठीक है, alright. तो it is very interesting, although I think this is the one way, but okay, there might be another way. आप सोच सकते हो, sum of the first 3 terms पता है, sum of the last 3 terms पता है. so बच्चे थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है इवन दो, तो मैं आपको बता देता हूँ. देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम सेम होता है, राइट? नॉट द सेम इन द सेंस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज सेम एज सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, राइट? एंड थर्ड लास्ट टर्म. ठीक है, तो आप उसका यूज करके सोचना कि क्या बनेगा. सो अगर मैं तीनों का सम कर दूं, ठीक है, सो आई एम गेटिंग 3 times द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूं ये कॉन्सेप्ट. सो लेट्स सी. ठीक है, सो व्हाट डू वी नो? आई विल टेल यू अनदर मेथड, इंटरेस्टिंग वे. यू कैन से इट टू बी मेथड 2, सो व्हिच कैन बी यूज्ड टू डू इट वेरी सिंपली. देखो बच्चे क्या बोल सकते हैं, देखो हमें ये पता है कि फर्स्ट लास्ट का सम क्या होता है, T1 plus T10
will be equal to T2 plus T9 is equal to T3 plus T8 and so on, right? Till the last thing will be T4 equal T5 equal to plus T6, है ना, मिडल तक आएंगे सेम होगा. सो बच्चे जब आपको ये दिया हुआ है that T1 plus T2 plus T3, okay, now let's say this sum is some P, some value P है ये sum, ठीक है. Now T1 plus T2 plus T3 is 321 and T10 plus T9 plus T8 is 405, ठीक है. जब आप इनको ऐड करते हो, so T1 plus T10, T2 plus T9, T3 plus T8, so that is 3 times P equal to 726, ठीक है. So you get the value of P as how much? 3 से डिवाइड कर दो आप, 243, right? Sorry, 242. तो आपके पास P का वैल्यू आ गया 242. एंड टू डू द सम, अब देखो कितने पेयर्स बनेंगे, 10 टर्म्स हैं सी. सो फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे 5 पेयर बनेंगे आपके पास, राइट? योर सम इज 5 टाइम्स P. अदरवाइज भी कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑल्सो, 10/2 into A plus L. A is T1 plus T10. ऐसे भी समझ सकते हो, इट्स अप टू यू. So 5 times P. Now it's simple, 242 into 5. Your sum will be 1210. So आप देख सकते हो हमें कोई इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, उतना कोई कॉम्प्लेक्स. इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम विल बी सेम एज सेकंड एंड सेकंड लास्ट. क्यों होगा? बिकॉज थिंक अबाउट दिस, T1 से T2 अगर जाना है मुझे, आई विल हैव टू ऐड D, बट T10 से T9 जाना है, आई विल हैव टू सबट्रैक्ट D. तो नेट सम तो कांस्टेंट ही हो गया ना. जब मैं स्टार्टिंग से आगे जा रहा हूं तो आई एम एडिंग अ D, एंडिंग से पीछे आना है तो आई एम सबट्रैक्टिंग अ D, सो दैट द सम रिमेन्स अ कांस्टेंट, ठीक है. सो सोचना इस मेथड के बारे में, ठीक है. सो जस्ट लाइक दिस, अगर आप जितना ज्यादा सोच सकते हो क्वेश्चंस के बारे में, कुछ पैटर्न सोचोगे, है ना, कॉम्बिनेशन सोचोगे, आप इजी मेथड ढूंढ सकते हो. सो व्हाट डू यू थिंक? ये मेथड आई थिंक वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड इन NSCGS, है ना. अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हो, इतना पढ़ते हो, दिस मेथड यू शुड बी गेटिंग इट, है ना. ये टाइम बचाएगा आपका मेथड. Whereas अगर आप दूसरे मेथड से जाओगे, इट विल कंज्यूम सो मच ऑफ योर टाइम. देखो कितना लेंदी हो गया था, राइट. सो आई होप you guys have understood what we have done today, right? So bache, in the coming Sunday on 30th, okay, you have another opportunity to enroll in our batches, ठीक है. You can give the online test Volt Vedantu Olympiad litmus test. 30th को वो टेस्ट होगा. It is for all the classes from 5th to 12th and all these courses जो लिखे हुए हैं, IOQC, IOQJS, all these exams, maths, IOQM, maths Olympiad, physics Olympiad, chemistry Olympiad, for whatever you are interested in, okay, you can give the test for that class accordingly, and you will be getting a call later on if you would be getting good marks. अगर अच्छे marks आएंगे, you will be getting a call from us so that you can enroll in our batches. तो बच्चों, इसमें हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि, ठीक है, कि हम सिंपल ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा कर सके ओलंपियाड्स में. सो दैट्स व्हाई these courses have been kept free, ठीक है. So our single aim is that bring gold for India, right, in Olympiads basically. So for that's why we have kept these courses for free, ठीक है. तो आप टेस्ट दो if you are interested and we'll enroll you in our batches, okay. So you can visit the link olympiad.vedantu.com for more information, okay. So this test is on the 30th, okay, mark your calendars, okay. All right, I hope everybody understood what we have done today. So we'll be back with the next portion of sequences and series in next week, okay. Thank you everyone, take care, bye bye.